नमस्कार सभी को. Namaste everyone. This program is going to be in Hindi and English. ये प्रोग्राम हमारा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में होगा. आज हमको 13 साल हो गए हैं Sessions with Namadakshit fan page लॉन्च किए हुए. It has been 13 years since the launch of Sessions with Namadakshit fan page. Thank you so much for all the love and support. आप सभी के प्रेम स्नेह के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Although we haven't been able to build a very loud audience, but we have been able to build a presence, right? Although हमने इन 13 सालों में इतना loud presence तो नहीं जनरेट किया जानबूझ के, लेकिन हाँ एक presence definitely जनरेट हो गया. ऐसा आपको मालूम है कि मैं अपना टाइम ज्यादातर स्टडीज में या मेडिटेशन में या दूसरी चीजों को खोजने में बिताता हूँ एज कम्पेयर टू कि कैसे अपने सोशल मीडिया को और ज्यादा बढ़ाया जाए. As you all know, I prefer more about studying and meditating and living life and exploring new things rather than trying to have a quote-unquote fan following over social media. मुझे नहीं मालूम नहीं कि हम कितनी रिकॉर्डिंग्स करेंगे इन एपिसोड्स की, but we will do as and when we can. I don't know how many recordings we're going to do, but we will do as and when we can. So आज का टॉपिक है ऊर्जा क्या है. Today's topic is what is energy. By the way, I haven't recorded. Tuesday, 16th March 2021. की डेट है 16 मार्च मंगलवार 2021 2021. हम सभी ने ऑलमोस्ट एक साल का लॉकडाउन देख लिया. इनफैक्ट कुछ जगहों में लॉकडाउन फिर से चालू हो रहा है. वैक्सीनेशन भी आ गई हैं, लेकिन चीजें वैसी ही हैं. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग वगैरह वगैरह थोड़ी सी खुली है, एटलीस्ट जहाँ मैं रहता हूँ. But still we have to take precaution, right? Although we have spent almost a year in the lockdown, most of us, but here at my end, we are mostly open, gradually opening. In some parts of the country, we have lockdown coming up again. In fact, already happened. The usual things of social distancing, physical distancing, and mask, and all of that is necessary. Vaccination is also there. But as you know, this virus is really unique, really giving an interesting challenge to the scientists and doctors about how to go about it. And at the core, immunity is the uppermost thing. But even if you have the immunity as the uppermost thing, your immune system will still be limited. Do you understand what I'm saying? It's like the soldiers. If you have an invasion from outside, you might have a very strong army, but your army would be very well counted. इम्यूनिटी के बारे में जरूर बोलते हैं लोग कि आप ये खाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए इस वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन इम्यूनिटी भी एक लिमिट तक ही होगी किसी की भी. जिस प्रकार से हमारे यहाँ अगर एक अच्छी सेना है और बाहर से आक्रमण होता है किसी भी देश में, तो सेना कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो सेना एक सर्टेन नंबर पे ही रहेगी, राइट? एक काउंटेबल नंबर पे रहेगी, इसको आप गिन सकते हो. लेकिन अगर लगातार कुछ आ रहा है तो सिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता ही करता है, राइट? तो अपने लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखें. कीप वेरी गुड केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल. ऑल्दो मैं खुद भी रिकॉर्डिंग करते वक्त बोल रहा हूँ, मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल किन किन एंगलों में, किन किन डायमेंशंस में उतनी अलाइन नहीं है. ऑल्दो आई एम talking about enhancing your lifestyle, I'm also realizing while I'm recording this that even my lifestyle is not so much uh, in alignment. Okay, so आज का टॉपिक है ऊर्जा क्या है. Today's topic is what is energy. इन लेक्चर्स का इंटेंशन, ट्रांसमिशन का इंटेंशन ये है कि जो भी बेसिक से बेसिक इंसान आए ऊर्जा वर्क के बारे में, एनर्जी वर्क के बारे में जानना चाहे, तो वो इन रिकॉर्डिंग्स को सुन सुन के काफी कुछ एक लर्निंग ले सकता है. The intention behind these episodes is to give you a very brief and short introduction about the fundamentals of energy work, chakras, thoughts, all of that. Although I'm saying it as a very brief, but I think it's going to be very much in depth. Welcome everyone once again. आप सभी का स्वागत है फिर से. आपको फैन की आवाज आ रही होगी?
यहाँ गर्मी काफी हो रही है एक्चुअली, तो ये फैन तो आपको सुनाई देता रहेगा. Okay, you'll be hearing the sound of fan. It's too hot here, so you will be hearing the fan as well. Okay. ऊर्जा क्या है? What is energy? Modern physics says that energy is the capacity to do work. मॉडर्न भौतिकी का विज्ञान ये बोलता है कि ऊर्जा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की क्षमता बताती है. इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. आप कितना काम कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं दिन रात उछल कूद मचाते रहते हैं, राइट. या कुछ चोट लग जाए, इवन हड्डियां भी टूट जाए, तो भी उनकी हीलिंग रिकवरी बहुत फास्ट होती है, राइट. क्योंकि उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है. So you must have noticed that little children, they play from day all the way to night, that really parents have to push them to bed and prepare the bed for them through story time and all of that. Uh, it's because they have a lot of energy, even if they get sick or even if they break their bones, get a fracture, the rate of recovery is much, much faster as compared to the adults, right? So, उनकी ऊर्जा ज्यादा है. They have more energy. ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कुछ ऊर्जाओं के बारे में बात करें अपन तो वी टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ एनर्जीज. इट वुड बी लेट्स से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक इतना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो वी हैव different kinds of energies, and another basis of differentiating the energy would be kinetic energy and the potential energy. Kinetic energy वो होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उस समय उसके मूवमेंट के थ्रू जो उसकी जो एनर्जी जनरेट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट. Any object which has the energy by the virtue of its movement is called the kinetic energy. Potential energy उसको बोलते हैं, एक रफ वे में बता रहा हूं मैं, कि पोटेंशियल हम कभी सुनते हैं ना कि कोई अगर एक नया टैलेंट हम देखते हैं, कोई नया गायक देखते हैं या नया कॉन्टेस्ट में किसी गायक को देखते हैं या कलाकार को देखते हैं, पेंटर को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, तो हम बोलते हैं इसमें ये पोटेंशियल बहुत है, राइट. वी से दैट दिस चाइल्ड हैज अ lot of potential about painting, that child has a lot of potential about music or singing. So it's like the potential. तो potential आप बोल सकते हैं कि potential energy हम सबके भीतर एक छुपी हुई एनर्जी होती है. It appears in the form of rest. Potential energy is, you can say that it is hidden in a particular moment of time in a person or an object. Okay. But it has the potential. It has the potential. So you can say it is in a form of rest. It is in the form of, maybe you can call it dormant. Okay. और किस तरह की ऊर्जा होती है? आपकी मस्कुलर एनर्जी होती है. आपके मसल्स के थ्रू जो ऊर्जा आप डेवलप करते हैं, यू हैव अ मस्कुलर एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ योर मसल्स, हाउ मच यू कैन walk, run, push objects, pull objects, pick objects, right? और आजकल हम काफी सुनते हैं बात पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, राइट. वी हियर अ लॉट अबाउट पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी. पॉजिटिव एनर्जी जैसे एंथुसियाज्म हुआ, होप हुआ, ट्रस्ट हुआ, लाइटनेस हुआ, हैप्पीनेस हुआ, ये हैप्पी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, राइट. So the positive energies which make you feel enthusiastic, which make you feel happy, which make you feel hopeful, stuff like that. This is the kind of energy where most of us would like to be in. Then we have negative energy. नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आसपास, हमारे भीतर, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, जैसे सैडनेस, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिजीज, सिकनेस. There is negative energy in our universe appearing as depression, sickness, sadness, grief, uh, abandonment, all those low vibe energy, so to speak.
अब ये वाइब का मतलब क्या होता है? ऐसा बोलते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। ओके, द हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज यूजुअली द पॉजिटिव एनर्जी, और जो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव एनर्जी। द लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज यूजुअली द नेगेटिव एनर्जी। लेकिन इसका कंसेप्ट भी बहुत रिलेटिव है, but this concept is also relative for people. For example, for some people, milk could be a very high vibrating food. For others, it could be not, depending on the state of the vibration of energy, their body, their mindset. कुछ लोगों के लिए जैसे दूध एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का जरिया होता है, एक ताकत देने का जरिया होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही दूध पॉजिटिव एनर्जी का जरिया नहीं हो सकता, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी स्टेट के अकॉर्डिंग। राइट, आजकल आप देख ही रहे हैं वीगन मूवमेंट, वेजिटेरियन मूवमेंट, ब्रेथेरियन मूवमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट। You are already seeing veganism, vegetarianism, breatharianism, and they all have their say, they all have their logic behind it. But I, as a person, like go with whatever suits your body. If it suits your body, if it's not bothering much with your lifestyle, with the climate, then please go ahead. Do what is good for your body, for your family. If for me, I'm not much of a person who tries to labelize the food, so to speak. For me, it's more about whatever kind of food that suits you, your environment, your climate. Um, please do your research on your own and just go with that. You do not have to try to fit in a particular kind of box. Okay? आपको जरूरी नहीं है कि एक अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जी रहा है तो आप भी उसी को फॉलो करें, जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। सो और किस प्रकार की ऊर्जा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज फाउंड इन आवर होम्स। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैजेट्स, no recording. If we do not have electrical energy, we won't be able to record it, we won't be able to run the modem, uh, right? Any kind of electrical objects. I think this is the most important energy in the urban areas, at least I believe. Hmm. So बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। हमारा जो लेक्चर का जो बेसिस रहेगा वो रहेगा लाइफ फोर्स। द वेरी फाउंडेशन, द बेसिस ऑफ आवर लेक्चर्स थ्रू आउट दिस रिकॉर्डिंग, दीज एपिसोड्स वुड बी लाइफ फोर्स। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं 1 घंटा रिकॉर्ड करूंगा, बट मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आधा घंटा काफी है। मेरे लिए भी लाइट रहेगा, हाई वाइब्रेशन रहेगा आपके लिए भी सुनने में, पचाने में, नोट्स बनाने में एक आसानी रहेगी। राइट, सो लाइफ फोर्स एनर्जी। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पैदा होती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, उसी प्रकार से लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जो लाइफ फोर्स से पैदा होती है और लाइफ फोर्स पैदा करती है। तो आप जो बोल सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यू कैन से द ग्रैंडफादर और द ग्रैंड पेरेंट, द पेरेंट एंड द चाइल्ड आर वन एंड द सेम, ऑपरेटिंग इन वन टाइम लाइन। Life force energy, just like the electrical energy is produced by the virtue of electricity, it produces electricity, it is produced by electricity. In the same manner, we have life force, which is produced by the life force itself, and it further propagates or produces life force. It is like a 3-generation phenomena happening in one timeline. It's like the grandparents, the parents, and the child happening all at the same time. Or you can say past, present, and future all happening at the same time. लेकिन हम जो मनुष्य होते हैं जो कि सिर्फ इस मोमेंट को जानते हैं, यूजुअली एक फिजिकल ब्रेन में इस रियलिटी को, हमारे लिए मैटर ज्यादा करता है कि हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है। फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स, अकॉर्डिंग टू अवर ब्रेन्स, एज वी आइडेंटिफाई this reality, this matrix, what is most important for us is the present. You know, we might give a lot of thoughts about past and future, but as a physical body, as a person, what matters is in the present. You know, it doesn't matter how much losses you have had in business. What matters is what's going on now, right? इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पहले कितने भी लॉसेस हुए हो, लेकिन मैटर ये करता है कि अभी आप कितने प्रॉफिट में।
एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि पास्ट में आपका कितना प्रॉफिट रहा हो, अभी आप कितने लॉस में चल रहे हो वो मायने रखता है, राइट? एज ह्यूमन बीइंग दिस प्रेजेंट। तो हम सबकी चाह होती है कि हम ये जो प्रेजेंट जो होता है उसको हम और अच्छे से एक्सपीरियंस करें, उसको सेलिब्रेट करें। Most of us want to celebrate the present moment. We want to, harness the present moment as best as possible. इस प्रेजेंट मोमेंट के सेलिब्रेशन के लिए हमने अब थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए, राइट? वी हैव डिफाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल डेज एंड फेस्टिवल्स to bring forth this present energy, this present better happy high vibration energy. लेकिन जैसे मैंने बताया कि लाइफ फोर्स ही लाइफ फोर्स को जन्म देती है, लाइफ फोर्स ही लाइफ फोर्स को जन्म देती है। ये स्टेटमेंट जो बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ फोर्स क्रिएट्स लाइफ फोर्स इटसेल्फ। या अगर हम पुराने स्क्रिप्चर्स में बन जाएं तो काफी लोग बोलते हैं, राइट, कि ईश्वर को किसने बनाया, हु मेड गॉड। अगर ईश्वर ने हम सबको बनाया तो हु मेड गॉड। तो यूजुअली जो आंसर होता है ईश्वर ने ईश्वर को बनाया, और ये लॉजिक को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि यस, ईश्वर का कोई क्रिएटर नहीं है एज सच, ईश्वर स्वयं है। So it's like this, as a child you might have wondered that who created God, because God created everything, humans and all life on the planet and more, even flood and disease, etc., etc. So the answer that usually comes up is God created God. This totally confuses the logic itself. But when you meditate deeper, when you reach a certain level of realization in your spiritual practice, you realize, oh yes, God creates God. And there's no more confusion because you're now operating from that oneness timeline that is not separated by grandparent, parent, and the child relationship. You realize that it's all happening one and now. You realize that past, present, and future are all happening one and now. Take a deep breath, गहरी सांस लें। तो इस तरह से हम धीरे धीरे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप सबको कि आप नोट्स बनाएं लेक्चर्स के दौरान। आई रिकमेंड दैट यू मेक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड। मेरा इंटेंशन ये है कि इन लेक्चर्स के थ्रू आपको लाइफ की सटलिटीज, लाइफ की बारीकियां काफी समझना। माय इंटेंशन इज दैट through these lectures you get to understand the very essence of life more and more and more। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ के एसेंस को इन लेक्चर्स में कैप्चर करें। यू कैन से दैट वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ इन दीस लेक्चर्स। मैं ऑफ कोर्स ये नहीं बोलूंगा कि ये ही सत्य है, कि ये ही सही है, आपके कंक्लूजन गलत हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं सिर्फ अपने विचार रखूंगा और आपको कहूंगा हमेशा कि आप इसमें मनन कीजिए, इसमें सोचिए, विचारिए और अपने कंक्लूजन निकालिए। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट all these things that I'm putting up here are meant to be, believed by you. You need to believe them because I'm saying it. What I want is to give you some food for thought so that you meditate on it, contemplate on it, and go ahead on your own. Okay. So, so वापस ऊर्जा क्या है? What is energy? Energy is the capacity to do work. Energy कार्य करने की क्षमता, और हमारे ये सारे ट्रांसमिशन जो रहेंगे वो लाइफ फोर्स के बारे में रहेंगे, या आप बोल सकते हैं प्राण शक्ति। और our series of lectures would be all about life force energy. Okay. So, आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। हम इस प्राण शक्ति को जानने के लिए थोड़ा सा हम शॉर्ट सा मेडिटेशन करेंगे। So I think the lecture is already enough for today. We're going to do a short meditation to tune into this life force. Okay, then. Of course, do not do this exercise while driving or operating heavy machinery.
आपको ये मेडिटेशन ये जो हम करा रहे हैं, आपको अब उसे ड्राइविंग या हैवी मशीनरी ऑपरेट करते हुए नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक फोकस चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉगिंग भी कर रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं करने की। डोंट डू इट। ओके, आंखें बंद। मन ही मन अपने आसपास एक श्वेत प्रकाश देखें, श्वेत प्रकाश का गोला। विजुअलाइज दैट यूर इनसाइड दिस बॉल ऑफ व्हाइट लाइट। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देंगे, उनसे लड़ना नहीं है। Let all the thoughts come up. Do not try to fight with them. Just bring awareness gently into the ball of white light. इस white light में focus बनाए रखें। Maintain your focus on the white light around you. ऊर्जा के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं, ऊर्जा के नियम ये कहते हैं कि हम जो जैसा सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। जिस प्रकार से हम प्रकाश की ओर मेडिटेशन करेंगे तो हम प्रकाश ही स्वयं बन जाएंगे। The principles of energy states that whatever you focus on, you become. In other words, if you focus on the light that we are focusing like right now, we become like the light. We become the light itself, thereby eliminating our life, our consciousness, our brain, bringing more clarity. Deep breaths, गहरी श्वास। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, उनसे लड़ना नहीं है। और अब मैं कुछ देर के लिए शांत हो जाऊंगा। I will remain quiet for a while. Just focus on the white light around you. श्वेत प्रकाश अपने आसपास देखें, उस पर अपना फोकस बनाए रखें। To remain quiet for a while. अपना ध्यान वापस शरीर पे ले आए। Bring awareness into your body. अपने शरीर के मन ही मन महसूस करें, देखें। Try to feel your body completely as you return back to your body. The breath, the flow of blood, all dimensions of the body. You might feel that you're yawning. आपको लग सकता है कि आपको जम्हाई आ रही हो। इसका मतलब है कि आप और relaxed हो गए हैं। It means that you have become more relaxed.
तो आप सभी ने कुछ समय के लिए लाइफ फोर्स एक्सपीरियंस किया. So all of you experienced life force for a short while today. मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा. आप मुझे फीडबैक प्राइवेट मैसेज या पब्लिक कमेंट में दे सकते हैं और इसको अब हम यूट्यूब चैनल में डालेंगे. इस बहाने कम से कम अपना यूट्यूब एक्टिवेटेड रहेगा. So I will wait for your feedback. You can put me as a private message or as a public message comment. This recording is now going on YouTube. I hope you enjoyed this call. Thank you so much. आशा करता हूँ कि आपको एक शॉर्ट एपिसोड अच्छा लगा. Thank you so much for joining. Namaste. Wow, 10:44 पे end कर रहे हैं. 10:44 we are ending at 10:44. Wow, just 26 minutes. Nice. Bye.